Hey guys, welcome back to this channel. This is Yashika, working as a nutritionist in the field of women and child nutrition, or you can say women and child healthcare. Plus, I also have a 4-year-old baby. Now he's going to be turned 5 years soon. So आज का वीडियो या today's video is going to be on tiffin ideas which we have to give to our kids when they are at school. So आज का वीडियो हम टिफ़िन आइडियाज़ के ऊपर फोकस करने वाले हैं. हाउएवर इफ़ यू आर थिंकिंग कि यहाँ पे कोई रेसिपीज़ आने वाली है, if you think that recipes are going to come over here, then no, this video is not going to show any kind of recipes, but few quick tips to all those mothers who really struggle to think different ways to help baby eat healthy. So चलिए चलते हैं आज के वीडियो के अंदर. So let's go through this video and let's see what tips I have for you. So let's get started. Now if you open Instagram and YouTube, you find variety of meals available, so many different ideas, but I think you will connect to me with this is that those ideas which is shown in the Instagram and YouTube reels are गुड टू सी, बट प्रैक्टिकली अगर देखने जाओ तो क्या आप उतने क्रिएटिव हो सकते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम नॉट दैट क्रिएटिव. क्रिएशन करना इतना ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन आई रियली एम नॉट एबल टू डू इट. एंड समटाइम्स once or twice a week, if at all I have to do something, I can manage that. Daily if you want to do such innovative thing is very difficult for me. So thus don't go into all those things, and today I'm going to talk about few tips, and the very first tip of this is plan the baby's tiffin over a weekend. So mostly weekends are the time where we are little bit relaxed. The baby have little bit of less school time, and we can think of what we can be given in the next week. So थोड़ा बहुत प्लानिंग कर सकते हैं. यू कैन प्लान एज पर लाइक यू कैन प्लान विथ द बेबी. तो बेबी के साथ प्लान कर सकते हो. अगर आपका बच्चा बड़ा है तो उसके साथ प्लान कर सकते हो. अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो कि अभी ये लास्ट वीक में जो मैंने दिया है, do I want to repeat that or do I want to go into something new. If you plan before you actually start your Monday, आपके पास काफ़ी वीकेंड्स पे टाइम होगा. अगर इफ़ यू वांट टू मेक सम बैटर्स, इडली बैटर, डोसा बैटर, so you can prepare those batters on weekend. If you want to add different vegetables to it and make it colorful idlis for the baby, so you can also plan in purchasing those ingredients, purchasing those vegetables. Maybe you can make purees out of it, and then it's just addition. And on the weekends, and you can plan ke Monday ko I'll give this, and you can plan in such a way that you know your meals are somewhat related to the baby's meal. So you don't have to make something different for the baby and different for the other family members. The second important topic which I am going to, or tip which I am going to focus over here is, because हमें बच्चे को vegetables and fruits का incorporation करना है, so we have to focus on quality in terms of quantity, because शायद बच्चा उतनी quantity नहीं खा सकता है, but then if we focus on bulkiness of a very little small amount of the quantity which we are giving to the baby, makes a lot of difference in terms of their health. क्योंकि बच्चे वहाँ पे देख देख के, एक दूसरे को देख देख के अच्छी तरीके से खा सकते हैं. So rather we focus on exaggerated things, we can always focus on small things which helps us in giving or
पुटिंग आउट अ गुड क्वालिटी फूड. सो गुड क्वालिटी फूड क्या होता है? गुड क्वालिटी मतलब यू डोंट, आई एम नॉट सेइंग कि ऑर्गेनिक परचेज कर सकते हैं. गुड क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट क्वालिटी. न्यूट्रिएंट क्वालिटी में द बेबी इज इन द ग्रोइंग स्टेज. द बेबी रिक्वायर्स करेक्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals. So carbohydrates are obtained from grains. Proteins are obtained from whole dals, pulses, nuts and seeds, your non-veg items. But sometimes what happens is non-veg and eggs are not allowed in school. So that is why we have to rely on whole pulses, nuts and seeds for the protein requirement. The baby also need good fats. So the good fats are nuts and seeds, of course. Plus good fats are oil, ghee basically, not oil I will say, but yeah, we can use oil also over here. Good fats are our avocado also. So in terms of quality we have to focus a lot. Now when it comes to vitamins and minerals, babies or kids are very reluctant in eating vegetables. सो मेरा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि छुपा के ही देना ज़रूरी नहीं है. हम डिस्कस कर सकते हैं, हम बच्चे को इसकी इम्पोर्टेंस बता सकते हैं. एंड इफ़ यू स्टार्ट ऑफरिंग द वेजिटेबल्स, एवरी वेजिटेबल विच यू टेक यू ईट एट होम बचपन से ही, स्टार्टिंग सॉलिड्स के टाइम से ही, इफ़ यू कीप ऑन इंट्रोड्यूसिंग टू देम, द बेबी इज़ ओके टू टेक योर वेजिटेबल्स एट इन द टिफ़िन ऑल्सो. तो कुछ एग्जॉटिक हमेशा होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है. नॉर्मल वेजिटेबल रोल, रोटी कैन ऑल्सो बी गिवन टू दीज किड्स. सो फोकस ऑन मोर क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी. तो हम क्वालिटी की बात कर ही रहे थे, तो आज मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगी कि वी वांट द बेबी टू गेट कार्बोहाइड्रेट्स. अभी बच्चे के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बुरा नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर ही फोकस करेंगे ऐसा भी नहीं है. सो द बेबीज़ फूड और द बेबीज़ बॉक्स शुड इंक्लूड 1 portion ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन बी लिटिल बिट मोर इन क्वांटिटी. तो कार्बोहाइड्रेट्स का इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए विथ दैट प्रोटीन. हमारे इंडिया में प्रोटीन का सोर्स वैसे भी बहुत कम यूज़ करते हैं. सो लेट्स जस्ट यूज़ अवर प्रोटीन. सो प्रोटीन्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज़ होल पल्सेस जैसे राजमा, छोला, चना. ओके, सो वी कैन यूज़ पुलाव. सो पुलाव में वी कैन ऐड छोले, राजमा, मसूर का दाल, समथिंग लाइक दैट. वी कैन हैव खिचड़ी इन द फॉर्मेट ऑफ वेजिटेबल, मे बी खिचड़ी पैनकेक्स काइंड ऑफ अ थिंग, और पैनकेक्स जहाँ पे आप मैश्ड बीन्स यूज़ कर सकते हैं, मटर यूज़ कर सकते हैं, पाव भाजी भी दे सकते हैं, लेकिन पाव भाजी में स्प्राउट्स भी डाल सकते हैं टू मेक इट मोर प्रोटीन रिच. सो इस तरीके से वी कैन इनकॉर्पोरेट प्रोटीन इन आवर बेबीज़ डाइट. पाव ना दे के पराठा दे सकते हैं बच्चे को, सो दैट इट इज़ ऑल्सो ओके कि मैदा नहीं दे रहे हैं हम. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इनकॉर्पोरेशन भी अच्छी तरीके से होना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग इनटू द पुलाव बेस थिंग. सो पुलाव में वेजिटेबल्स अच्छी तरीके से, अभी बच्चे को जिस तरीके से पसंद है उसको, समटाइम्स छोटे बच्चे होते हैं उनको मुंह में आता है, उनको अच्छा नहीं लगता है. सो व्हेन वी आर कुकिंग द राइस, ओके, और या तो फिर हम राइस अलग से कुक कर ले और स्टीम कर ले वेजिटेबल्स को, और उसका पेस्ट बना के, उसका ग्रेवी टाइप्स बना के जो राइस के साथ लग सकता है. सो दैट ऑल वी कैन डू फॉर द बेबी, सो दैट उनको अच्छा नहीं लगता है ईटिंग. जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते वी कैन हैव अ प्रॉपर स्मॉल चॉप्ड वेजिटेबल्स इनटू इट कि बच्चा खाए तो उसको परेशानी भी नहीं हो. वी कैन ऑल्सो यूज़ soya chunks over here to make it more protein rich. Fruits and vegetables में at least 1 fruit is something which we want the baby to eat. at least 1, वैसे तो 2 खाना चाहिए बच्चे को, बट कोई एक फ्रूट का पोर्शन हम बच्चे को दे सकते हैं यहाँ पे. we can always substitute with we can always give curd or yogurt, क्योंकि प्रोबायोटिक्स भी हमें बच्चे को देना है ना. इन दैट वी कैन ऐड फ्रूट, और इन दैट वी कैन ऐड सम सीड्स पाउडर, so that we are going to give good fats also. We can make the baby's meal in ghee, so that baby को मुफाज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, हेल्दी गुड फैट्स भी बच्चे को मिल जाए. एंड उसके बाद यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स का इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे ज़रूर करेंगे, सो दैट बेबी इज़
exposed to different types of fruits. Now I have seen so many tiffin ideas online by myself, even though I don't have to give any kind of tiffin to my babies. Just one day I have to give tiffin, and I don't make it so elaborative. I just give roti sabzi which is cooked at home. हम सब के लिए जो बनता है वही उसको रोटी सब्ज़ी के फॉर्मेट में दिया जाता है, एंड ही लव्स दैट बिकॉज मे बी ही इज़ बीन हैबिचुएटेड विद दैट. बट वॉट एवर ही गेट्स इन द स्कूल ही ईट्स दैट एंड ही रियली लव्स दैट. बट अगर मैं बात करूँ टिफ़िन आइडियाज़ जो मैं देखती हूँ, वहाँ पे आई सी समवेयर some tiffin ideas I have seen chocolates are given on a daily basis. So I have seen various series of tiffin ideas वहाँ पे chocolates है. Some high or packaged foods are also offered as a tiffin even though it is a small portion. Now I am not against of the कि आप मत दो, बिल्कुल भी मत दो packet foods and all, but packet foods आप दे रहे हो, just read the labels because अभी के इतना ज़्यादा पैकेट फूड के ऊपर अगर हम बच्चे को ले जाएंगे, सो इट्स मोर इन प्रेजर्वेटिव्स, इट्स मोर इन हाई शुगर, ट्रांस फैट्स एंड ऑल. तो हम बच्चे को हेल्थ, मतलब एक पोर्शन हेल्थ का है और दूसरा पोर्शन नॉट, इट्स नॉट हेल्दी, तो हम कुछ हेल्दी बच्चे को दे ही नहीं रहे हैं. Once in 15 days is okay to put something in the tiffin box like this, but daily some portion of that is really what, as a dietitian or a nutritionist, I won't recommend to put it inside the baby's lunch box. Now sometimes what happens is कि बच्चे को नहीं देते हैं, so they don't eat the other tiffins, right? अदर जो टिफ़िन में होता है वो, लेकिन आदत तो हमने ही डाला है. सो किड्स इमिटेट अस. इफ़ यू ईट इन फ्रंट ऑफ द बेबी और इफ़ द अदर पीपल आर गिविंग चॉकलेट्स टू योर बेबी, सो वहाँ पे यू मे फील कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोग आके खिला जाते हैं, लोग बोलते हैं कि इसको खा सकते हैं. बट ओवर हियर आई वुड सी दैट, आई वुड say that communication with the kid works the best. एक बार कम्युनिकेशन करने से बच्चा समझ जाएगा नहीं, बार बार कम्युनिकेशन करने से बच्चा थोड़े टाइम के बाद ज़रूर समझ सकता है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस. उनके टिफ़िन में अगर हम ना डालें एंड वंस इन अ वाइल अगर हम डाल लें, सो मे बी इट कैन मेक अ डिफरेंस. लोगों को हम बहुत ज़्यादा रोक नहीं सकते हैं, एक हद के बाद वी आर हेल्पलेस. बट अगर वी कैन रिलेट द सिकनेस टू द बेबी, टू दिस अनहेल्दी फूड, कि भाई तुमको ये हो रहा है is because of this, and maybe doctors can play a role, or there are some chunk of family members who are supporting you, तो वहाँ से उनको same type of information मिलता है, and over that teachers also help. So teachers अगर बोलेंगे same language, if we say same language, तो things do work in this journey. I know this journey is tough, but I would recommend as a dietitian कि once in a while is fine, those unhealthy things, but then अभी कुछ नहीं होगा. when the baby is going to go in the teenage or adulthood, we are inheriting them non-communicable diseases right in the childhood years. The non-communicable diseases are diabetes, blood pressure, etc. हमें नहीं चाहिए हमारे बच्चे को ये हो, तो थोड़ा सा हम ध्यान दे सकते हैं उनके ऊपर, थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की कोशिश करें कि नहीं दे सकते हैं, नहीं देना चाहिए. ओके, ये डायलॉग हमेशा मैं भी सुनती हूँ कि बच्चे चॉकलेट्स नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा, लेकिन बच्चों को चॉकलेट्स देना ज़रूरी क्यों है, वो आप पूछ सकते हैं उनको कि वाई इट इज़ सो नेसेसरी फॉर द बेबी टू ईट अ चॉकलेट. Now the last thing in this video I will talk about picky eaters. I see so many kids who are picky eaters. वो खाना ही नहीं चाहते हैं. तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि वो क्यों खाना नहीं चाहते हैं. खाना नहीं है is a kind of a behavior. Why the baby has accepted that behavior? तो odds को फाइंड करना होगा, क्या उनको अच्छा लगता है खाने में. If you see that they are packaged foods, या if you see कि वो unhealthy options choose कर रहे हैं, तो somewhere the high sugar, fat and trans fat is
the trigger that is creating a lot of havoc in the baby's body कि मेरे को यही चाहिए, मेरे को healthy नहीं चाहिए. पिकी ईटिंग जनरली स्टार्ट होता ही नहीं है इफ़ आपका स्टार्ट सॉलिड्स का स्टार्ट करेक्ट फूड ग्रुप से हो. व्हाट आर फूड ग्रुप्स? हमारे घर पे जो ग्रोसरीज आती है उसको बच्चों के लिए स्पेसिफिकली 8 फूड ग्रुप्स में डिवाइड किया है सो दैट मदर्स एंड पेरेंट्स कैन डू अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ दैट एंड मेक अ हेल्दी मील सो दैट बच्चे को जो भी मात्रा में न्यूट्रिएंट चाहिए वो उनको मिल सकता है. एंड कई बार ये होता है कि बच्चे की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जो कुछ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ऐसी होती है कि जो बहुत डेफिशिएंट होने के बाद हमें पता चलती है कि देयर बेबीज आर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट एंड दैट्स वेयर द बेबी इज having a rejection or a picky eating mode. If I talk about my own journey, my baby is not exactly a picky eater, is not completely a picky eater. या ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि he eats everything which I plate in his plate because he don't like salads. So because he don't like salads, I add the vegetables, the salad vegetable into his meals only. मेरी अगर बात करूँ तो मैंने सारे अपने जो रेसिपीज़ है वो मॉडिफाई कर दिए हैं सो दैट ही इज़ ऑल्सो बेनिफिटेड एंड वी आर ऑल्सो बेनिफिटेड विद द सेम थिंग. एंड ट्रस्ट मी, टेस्ट डिफर नहीं होता है. सो पिकी ईटिंग के लिए आई हैव किड्स न्यूट्रिशन प्रोग्राम. सो इफ़ यू आर समबडी हु इज़ facing this picky eating problem, a proper tailor-made diet plan for the baby and a strategic diet plan for the baby, a strategic communication between you and me can make a lot of difference in the baby to accept the meals and all. So I am going to add that description, I am going to add that link in the description box, तो check कर लेना एक बार. But that's it for this video. I hope you like this video. कोई रेसिपीज़ नहीं थी of course, क्योंकि I believe कि रेसिपीज़ के लिए तो there is so many things available out there, but उतना ज़्यादा प्रेशराइज अपने आप को करने की ज़रूरत नहीं है. I am a least creative person, so मैं उतना ज़्यादा माइंड उसके अंदर नहीं लगा सकती हूँ. So it is okay if you cannot give different colors or different shaped foods to the baby. It is okay कि ऐसे ही दोगे तो ही बच्चा खाएगा. Many a times I feel that mothers are out of ideas, but why do we need an idea? हम जो खा रहे हैं वो ही हम बच्चे को दे सकते हैं. Why can't we give the same thing? We can definitely give the same thing. So don't indulge yourself into planning any exotic meals कि भाई मैं इस तरीके से दूंगी, या हम जो खा के बड़े हुए हैं सेम ही दो, पोहा दो, उपमा दो, चीला दो, पराठे दो, वही दे दो. हमें एक्स्ट्रा अलग से कुछ करने की ज़रूरत क्यों है? So that's it for this video. I hope you like this video and ऐसे ही सारे videos आते रहेंगे related to maternal and child nutrition. So subscribe करना ना भूलो and see you in the next video. Bye bye.